أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب وعلیکم لوگ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نبی خیر میم۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی اچھی طرح سے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہی ہیں کہ ہم لوگ آج اپنی کلاس کے سیکنڈ اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ آج سے شروع کریں گے مرکبات، کمپاؤنڈ ورڈز۔ سنگل لفظ کو، یعنی جب کوئی ورڈ سنگل ہے، ولدن ہے صرف، تو اس کو کہتے ہیں مفرد۔ میں لکھتی بھی چلوں ساتھ میں ایگزامپل۔ آپ دیکھیں گے کہ اب تھوڑا میں سلائیڈ میں کم لکھوں گی اور خود سے یہاں پہ لکھوں گی زیادہ، اور آپ بھی ساتھ میں لکھ سکتی ہیں، ساتھ میں آپ کلاس نوٹس لے سکتی ہیں، کیونکہ بیسک کانسیپٹس سمجھ میں آ چکے ہیں آپ کو۔ پہلے میں نے شروع میں منع کیا تھا کہ کلاس میں مت لکھیں، لیکن اب آپ لکھ سکتی ہیں۔ مفرد یعنی تنہا لفظ، ایک سنگل لفظ کو کہتے ہیں مفرد۔ میں حرکات بھی لگا دوں، جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی صحیح اعراب کے ساتھ اور حرکات کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے؟ مفرد، تنہا لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ اور جب دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظوں کا مجموعہ کہلاتا ہے مرکب، ٹھیک ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب۔ جب دو یا دو سے زیادہ لفظ ملتے ہیں تو بنتا ہے مرکب، اور مرکبات مرکب کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب کی جمع ہے۔ مرکبات، مرکبات بھی دو طرح کے ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کو آپ ایسے سمجھیں انکمپلیٹ، اور تام مطلب کمپلیٹ۔ انکمپلیٹ سے کیا مطلب ہے؟ مرکب ناقص، ناقص ورڈ تو آپ کو میننگ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو اپنا میننگ تو کچھ رہتے ہیں، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی انفارمیشن پوری ملی نہیں، تو ایسے مرکبات کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ اور دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ جس سے کہ بات کمپلیٹ ہو جائے، بات پوری سمجھ میں آ جائے، آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے، اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ اب مرکب ناقص کی دیکھیں اقسام کیا ہے، اور ان میں سے اکثر آئی تھنک سارے ہی آپ کو آتے ہیں، سب آپ کو کہیں نہ کہیں بتائے جا چکے ہیں۔ اب اس کلاس میں ہم لوگ ہر ایک مرکب کو کافی ڈیٹیل میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم نے بتایا کوئی جلدی نہیں ہے، تو ہم کافی ڈیٹیل میں لے کے چلیں گے۔ اور انٹروڈکشن سب کا آپ کو تھرسڈے میں جو کلاس ہوا کرتی تھی، جو اب وینسڈے میں ہو رہی ہے، وہاں آپ کو مل ہی چکا۔ تو سب سے پہلے مرکب توصیفی، اس کے بعد مرکب اشاری، مجھے ضرورت نہیں ہے آئی تھنک اعراب لگانے کی، حرکات لگانے کی۔ جب میں اعراب کہتی ہوں تو یاد رکھیں کہ عربک میں اعراب صرف آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں، باقی سب کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، جی۔ جبکہ اردو میں حرکات کو بھی اعراب ہی کہتے ہیں۔ تو آپ عربک پڑھ رہی ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سارے حروف پر جو نشان ہوتے ہیں وہ حرکات ہوتی ہیں، اور کسی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے یا جو ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اعراب۔ مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب عطفی، اور اس کا بھی چھوٹا چھوٹا انٹروڈکشن آج کی کلاس میں لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مرکب تام،
ऐसे मुरक्कब जिससे बात कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे मुरक्कब को फिर सेंटेंस या जुमला भी कहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मुरक्कब इस्मिया नहीं लिखा गया। ऐसे मुरक्कब को फिर क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया, जिससे पता चल जाए कि बात कंप्लीट हो गई है, जुमला तैयार है आपका। जुमला इस्मिया वो जुमला जो इस्म से शुरू, बहुत ही आसान है। ये सारे नाम सुभान अल्लाह इतने आसान है कि इससे ही देखने से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है। जुमला इस्मिया वो जुमले जो इस्म से शुरू हो, वो जुमला इस्मिया कहलाते हैं, और वो जुमले जो फेल से शुरू हो, वो जुमला फेलिया कहलाते हैं। अब एक एक करके देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ देखिए मैंने नाकिस लिखा हुआ है, जिससे आपको याद रहे कि हम मुरक्कबे नाकिस की पहली किस्म कर रहे हैं, मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी दो अस्मा से मिलकर बनता है, दो अस्मा का मजमुआ, दो या दो से ज्यादा, क्योंकि एक ही मौसूफ की दो तीन सिफत भी आ सकती हैं। चूंकि हमारी एलिमेंट्री क्लास है तो आप यही लेके चले कि दो इस्म, ठीक है। इस्म प्लस इस्म से मिलकर बनता है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, पहला इस्म मौसूफ कहलाता है और दूसरा इस्म सिफत कहलाती है। थर्ड पॉइंट, सिफत चारों लिहाज से, यानी एराब, जिन्स, शोशे थोड़े कम हो गए, आप पूरे कर लीजिएगा, अदद और वुसत, इन चारों लिहाज से सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी। देखिए ये लिखना जरूरी नहीं था, मैं ऐसे बोल भी सकती थी, बस इतना ही काफी था कि मैं कह देती कि सिफत मौसूफ को इस्म के चारों पहलुओं से फॉलो करती है। लेकिन लिखने का मतलब ये होता है कि आपकी आंख में भी ये पिक्चर जाए और ये चीज बहुत क्लियरली आपके जहन में महफूज हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान में मुरक्कबे तौसीफी से बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा, और अगर ये पॉइंट आपसे मिस हो गया तो आप किसी की सिफत किसी दूसरे इस्म को दे रही होंगी, है ना। और कुरान में ये मामूली गलती फिर नहीं होती, फिर ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा होगा कि उस जुमले के अंदर दो तीन इस्म होंगे, है ना। कोई इस्म रफा की हालत में है, कोई न, सबको पता है कि जो काम कर रहा होगा वो रफा की हालत में होगा, और जिस पर काम हो रहा होगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर इंसान की तख्लीक कर रहे हैं तो अल्लाह फाइल है रफा की हालत में, और इंसान मफूल है नसब की हालत में। अल्लाह ताला की सिफत जो आएगी वो रफा की हालत में होगी। क्यों होगी? क्योंकि एराब से वो फॉलो करेगी, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि वो उसके उस, हाँ, अभी तक आप, जैसे मैं बता क्यों कह रही हूँ कि ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि अभी आप, मैं कह रही हूँ बार बार कि आप बेसिक एलिमेंट्री क्लास कर रहे हैं, तो कर रही हैं, तो आपको पता है कि दोनों हम साथ साथ ही लेके आते हैं, वलदुन सालिहुन लेके आते हैं, लेकिन आयत के अंदर उस इस्म की सिफत थोड़ा दूर भी आ सकती है। हम अभी आपको बहुत सारी बातें हम बोल नहीं सकते, आई हैव टू कीप टू माई सेल्फ, तो मैं नहीं बोल पा रही हूं अभी वो बातें आपको। लेकिन उसी सिफत की एराब को हम मौसूफ की सिफत, मौसूफ के एराब से मैच करके पहचान लेते हैं कि ये सिफत जो है वो किसकी है, ठीक है। अगर जैसे अभी मैंने कहा कि अल्लाह फाइल है रफा की हालत में, अगर लफ्ज अल्लाह है उस आयत में, तो जो सिफत रफा की हालत में होगी वो अल्लाह से मंसूब होगी। और अगर वहां इंसान की तख्लीक हो रही है, जिन की तख्लीक हो रही है, तो ये सारी चीजें मंसूब होंगी, नसब की हालत में होंगी, क्योंकि ये मफूल है। अपना एराब का टॉपिक, इस रिकॉर्डिंग, देखिए रिकॉर्डिंग मुझे भेजना और
ऑनलाइन करना, रिकॉर्ड करना, ये सब अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इन द सेंस, किसको अच्छा लगता है कि अपनी आवाज सुने और रिकॉर्ड करे और वो भी पब्लिक में कर दे, सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए। तो आप जरूर उससे फायदा उठाया करें। पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जो लोग बहुत रेगुलर है क्लास में, वो कभी कभी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, घर के काम कर, मैं मुझे सीखने में इसी से हेल्प मिली, क्योंकि मैंने भी जब सीखा ये सब कुछ तो आप ही की तरह से इन्हीं सब मसरूफियत के बीच ही में सीखा। तो घर के काम करते हुए और ये करते हुए मैं अक्सर चीजों को बार बार प्ले करती थी। एक एक लेक्चर मेरा बहुत बहुत बार सुना हुआ होता था। मुझे किसी का लेक्चर नहीं मिलता था, मैं खुद अपना बना के, अपना रिकॉर्ड करके, चाहे वो वॉइस होता, वॉइस ही ज्यादा, क्योंकि काम करते वक्त तो ऑडियो नहीं देख, वीडियो नहीं देख सकते, तो मैं अपने ही समझे नोट्स तो क्या बनाती थी, अपने ही ऑडियो बना के, और मैं काम करते वक्त अपने ऑडियोज प्ले करती रहती थी। उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि हम लोग को नहीं वक्त मिल सकता, तो आपको तो चले यहाँ मिल रहा है बना हुआ, अ, होती है ये वीडियो। तो वीडियो जब आप एक बार जब बैठ के देखें तो यू नीड टू सी वीडियो, आपको लिखा हुआ देखना जरूरी है। वो चाहे आप क्लास में देख लें, अगर क्लास आपसे मिस हुई है तो आप एक बार जरूर बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग देखें। लेकिन उसके बाद कभी कभी पिछली रिकॉर्डिंग्स को ऐसे ही रैंडमली जाए कि आज हम लेक्चर नंबर 3 को सुन लेते हैं आज वो, या कभी प्लेलिस्ट में जाके लाइन से ही सुनना शुरू कर दें, तो सुनती रहे इंशाअल्लाह ताला। तो ये पॉइंट, ये जो एरो लगा लगा के मैंने बार बार लिखा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। ठीक है, कि मुरक्कबे तौसीफी में सिफत मौसूफ को चारों पहलू से फॉलो करेगी। आई डोंट थिंक सो मुझे बताना है कि मौसूफ क्या है और सिफत क्या है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि मौसूफ वो इस्म होता है जिसकी सिफत बयान की जाए, यानी वो लफ्ज जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए वो मौसूफ कहलाता है, और वो लफ्ज जो मौसूफ की अच्छाई या बुराई को बयान करे वो सिफत कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया मौसूफ सिफत। ये बहुत अच्छी तरह याद रखें कि अरबिक में मौसूफ पहले और सिफत बाद में, जबकि उर्दू और इंग्लिश में इसके ऑपोजिट होता है। तो जब भी आप मुरक्कबे तौसीफी का ट्रांसलेशन करेंगी तो हमेशा पीछे से करेंगी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। मैं एक लिख के यहाँ दिखा देती हूँ। इसको आप कैसे याद, ऐसे याद रख सकती हैं कि मुरक्कबे तौसीफी का तर्जुमा हमेशा क्रिस क्रॉस तीर से होगा, क्रिस क्रॉस तीर से करेंगे। कुछ मुरक्कबात हैं जिनका क्रिस क्रॉस से करते हैं और कुछ का डायरेक्ट करते हैं, तो ये भी मैंने इसीलिए ड्रॉ कर दिया कि आपको ये पॉइंट हमेशा याद रहे। तो इसका तर्जुमा होगा नेक लड़का। चूंकि आप देख रहे हैं नकिरा है, इसलिए यहाँ पे एक या कोई का भी आप इजाफा करेंगी, एक या कोई, जो भी आपको वहां सूट कर रहा हो, कोई नेक लड़का या एक नेक लड़का, क्योंकि ये हमें तन्वीन दिखी यहां से तो हमें पता चला कि वाहिद भी है और ये नकिरा भी है। अगर अल वलदुस स्वालिहु, अब देखिए जैसे ही यहाँ पे अल लगा, यहाँ पे भी अल लग जाएगा, ये तन्वीन हटेगी, जाहिर है अल लगा तो ये भी तन्वीन हट गई क्योंकि यहाँ भी अल लगा। अल वलदुस स्वालिहु, अब वहां पे सिर्फ नेक लड़का, क्योंकि अब वो मारफा है। ठीक है, ये सारी चीजें सुबहान अल्लाह आप वेंसडे और थर्सडे की क्लास में, चूंकि अब हमारी क्लास वेंसडे को शिफ्ट हो गई है, तो थर्सडे की क्लास में आपने ये चीजें काफी डिटेल में की हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये यहीं पे नहीं, हम फिर कुरानी मिसालों के जरिए एक एक क्लास एक एक मुरक्कब की करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसमें हर चीज की किस तरह से जमीर के साथ और इसके साथ वो सारी चीजें लेके आएंगे, जिससे इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको कुरान समझने में आसानी हो। मुरक्कब इशारी,
मुरक्कब इशारी, इसमें इसके भी दो जुज हैं। पहला पॉइंट है इसमें इशारा, यहां भी दो इस्म ही है, मैं पहले इस्म और इस्म ही लिख दूं। ये भी दो अस्मा का मजमुआ है। पहला इस्म होता है यहां पर इसमें इशारा, और दूसरा इस्म होता है मुशारुन इलैह। जब अरबी कहा जाएगी ना तो ये इलैही और ये सारी ये इला और ही है, बताते हैं इसको अच्छा भी। इसमें इशारा मतलब पॉइंटर, पॉइंटिंग नाउन, वो नाउन या वो इस्म जिसके मदद से किसी दूसरे इस्म की तरफ इशारा किया जाए। ठीक है, ये नजदीक के लिए अलग है और दूर के लिए अलग है। जैसा कि मैंने कहा, जब मुरक्कब इशारी की क्लास करेंगे तो वहां पे डिटेल में इन सब चीजों को लेके चलेंगे, इनकी गर्दान को भी याद करेंगे। और अभी बस हमारी ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें मैं चाह रही हूं कि ये सारे 5 + 2 7 मैं कवर कर दूं। इसमें इशारा पहले आता है यहाँ पे, और मुशारुन इलैह मतलब वो इस्म जिसकी तरफ इशारा किया जाए। मुशारुन, इशारा किया जाने वाला। इसकी मीनिंग क्या हो गई? जब मुंह लग जाता है किसी इस्म, कोई इस्म जब मुंह से शुरू होता है तो वाला का तर्जुमा करते हैं ना, जो लोग यहाँ पे कुरान का तर्जुमा करके बैठे हुए हैं उनसे मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे मुशारुन मतलब इशारा किए जाने वाला। और जो लोग नए हैं वो ये समझ लें कि जब कोई इस्म की पहचान क्या है? तनवीन दिख रहा है इसलिए मैं इस्म कह रही हूँ। जब किसी इस्म के शुरू में एडिशनल मुंह हो जो कि उस रूट लेटर का हिस्सा ना हो तो तर्जुमा फिर वाला वाला करके करते हैं। मुशारुन, इशारा किया जाने वाला, इलैही जिसकी तरफ, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए। ठीक है, इला मतलब होता है तरफ, और ही मतलब होता है इसी मुशारुन की तरफ जा रहा है, तो इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपकी समझ में आएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ पे ये इस्म, ये मुरक्कबे नाकिस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इस्म तो यहाँ पे होगा हादा या जालिका। मैंने दोनों का सिर्फ पहला और वो भी मुजक्कर का ही ले लिया है। ठीक है, फिर इसकी पूरी गर्दान आएगी, हादा की अलग आएगी और जालिका की 6 लफ्ज की अलग आएगी। तो ये हो गया हमारा इसमें इशारा, जो कि इन गर्दानों में से कोई एक लफ्ज होगा। और मुशारुन इलैह याद रखें, मुरक्कबे नाकिस में हमेशा अल से शुरू होगा, अल वाला इस्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अल वाला इस्म नहीं हुआ, अगर ये तनवीन वाला हुआ, तब ये मुरक्कबे नाकिस नहीं होगा, ये मुरक्कबे ताम हो जाएगा। अब इतनी बड़ी बात तो आप क्लास में शायद ना लिख पाए, रिकॉर्डिंग से ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या बताई हमने कि मुशारुन इलैह मुरक्कबे नाकिस में हमेशा अल वाला इस्म होगा। अब एक कुरान की ही मिसाल आपको देते, ज़ालिकल किताबु। ये क्या कर दिया? ठीक है, अल के ऊपर ये साकिन जो है ये अल का है, लामे तारीफ का है। तो ज़ालिकल किताब, अब जो आपने देखा कि ये इसमें इशारा हो गया, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मुरक्कब, और मुशारुन इलैह मिल गया हमको अल के साथ। और जैसे ही अल के साथ हमको मिला, हम समझ गए कि ये मुरक्कबे नाकिस है। अभी बात पूरी नहीं हुई। ज़ालिकल किताबु, ये किताब। ठीक है, ज़ालिकल किताबु ये बईद का है, वो किताब
या ये किताब, ज़ालिकल किताबु वो किताब, बात पूरी नहीं हुई। हम ये नहीं कह सकते इसको वो एक किताब है ना, क्योंकि ये मुरक्कबे नाकिस है, वो किताब, बस आगे बात आ रही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, आगे बात आ रही है, जुमला भी आगे जाके कंप्लीट होगा, यहां तक क्या है, मुरक्कबे नाकिस है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरक्कबे नाकिस और जुमले से में कंफ्यूजन से बचने के लिए, कि मुरक्कबे इशारी में मुशारुन इलै हमेशा अल वाला इस्म होगा। ठीक है, आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि कुरान से इंशाअल्लाह ताला इन पॉइंट्स को नोट करते हुए, जो एकदम क्लियर कट एग्जाम्पल हो, ठीक है, कोई भी मुझे कॉम्प्लिकेटेड, अगर हो सकता है मेरी क्लास में इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो जो मुझसे भी मतलब कि आगे हो इंशाअल्लाह, तो वो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज कभी हमारे ग्रुप में शेयर ना करें, है ना, चीजों को लड़कियों को हम चाहते हैं, चीजों को नहीं, सॉरी, लड़कियों को हम चाहते हैं कि कंफर्टेबल रखें, तो हम आसान से चलेंगे, और आसान ही है, जब हम आसान से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते हैं तो मुश्किल चीज भी हमारे लिए आसान होती है। जब हम नीचे की नॉलेज होती है और जंप करके ऊपर जाना चाहते हैं, बाज दफा टीचर्स भी ये मिस्टेक करते हैं, और स्टूडेंट तो अक्सर ये करना चाहते हैं कि बेसिक पे मेहनत नहीं करना चाहते और चाहते हैं बड़ी बड़ी चीजें समझ में आए, बस ये होती है फितरत इंसान की, जो कुरान को मुश्किल, जबकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, तो अल्लाह ताला कहते हैं आसान है, लेकिन हम अपनी हरकतों की वजह से चीज को मुश्किल बना देते हैं। तो आप में से जो भी ग्रुप में शेयर करेगा वो बिल्कुल सिंपल वाला, जिसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा सिंपल होंगे, वो नंबर 1 स्टूडेंट होगा, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे हो। सबसे आसान वाला आप इशारा भी यूज कीजिए, हाँ उलाई वगैरह भी मत लेके आइए, ठीक है, आसान आसान बस जो बताया जा रहा है, हादा तालिका बताया है तो बस आप इन्हीं दोनों से लेके आए, जैसा बताया जा रहा है, अगर सिंगुलर बताया जा रहा है तो सिंगुलर ही लेके आए, हालांकि वलदानी स्वालिहानी भी हो जाएगा, ठीक है, अगर उस तरह का भी ले आए तो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कीप योर होमवर्क एज सिंपल, क्योंकि दूसरे लोग भी आपका पढ़ रहे होते हैं तो वो परेशान ना हो। थर्ड उस पे आता है, अब तक इन दोनों मुरक्कब में किसी को कुछ पूछना हो, पूछने की बात मैं इसलिए नहीं आपको कह रही हूँ कि ये सारी चीजें भी बहुत डिटेल में इंशाअल्लाह ताला कराई जाएंगी, ठीक है, तो मैं ही कर लेती हूँ कि जिससे मैं पूरा कर सकूं आज की क्लास। मुरक्कब इजाफी, इस ये भी जो है दो इस्म से ही मिलकर बनता है, इस्म प्लस इस्म, ठीक है, इस्म नहीं, ठीक है, इस्मुन से इस्म, इसको बस आप साकिन कर लेंगी, सीन हमेशा साकिन है, सीन पे जबर लगाएंगी वो कुछ और बन जाएगा, बेचारा इस्म रह ही नहीं जाएगा। पहला इस्म इसमें होता है मुदाफ, पहला इस्म कहलाता है मुजाफ और दूसरा कहलाता है मुदाफ इलैह, और ये भी बिल्कुल उसी तरह से बताते हैं भी क्यों ऐसा नाम है। मुजाफ का होता है ताल्लुक, इजाफत, है ना, इजाफत, इसमें ताल्लुक, एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक, ठीक है। मुजाफ वो चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो चीज जिसको बिलोंग करती है या उस चीज का जिससे ताल्लुक होता है वो होता है मुदाफ इलैह, ठीक है। जब भी एग्जाम्पल लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे तो आपको ये चीज क्लियर होगी। मुदाफ के बारे में बात की जा रही होती है, मुदाफ हमारा मकसूद होता है, ठीक है, और इसका जिससे ताल्लुक है वो कहलाता है मुदाफ इलैह। फिर थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि मुदाफ पे ना अल होता है और ना ही तनवीन होती है,
ये दोनों चीज कभी नहीं होंगी। और जैसे ही हमको कोई, आपको पता है कि इसम की जब शुरू में आपको बताया गया था तो बेसिक पहचान ही बताई गई थी कि किसी भी इसम की बेसिक पहचान क्या है कि या तो उसके शुरू में अल होगा या उसके आखिर में तनवीन होगी, लेकिन यहाँ दोनों ही नहीं है। तो जब दोनों ही नहीं होती तो वो चीज हमको अलर्ट करती है कि ये इस्म मुदाफ हो सकता है। ठीक है, अभी आप एलिमिनेट इसलिए नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह क्योंकि फेल नहीं पढ़ा। जब इस्म, फेल और हर्फ तीनों चीजें हम पढ़ लेते हैं तब हमें क्लियरली पता चलता है कि ये चीज इस्म है। अभी तो हो सकता है कि कोई फेल ही आपको लगे कि अब जैसे नसरुन है ना, नसरुन ये इस्म है और नसरा ये फेल है। तो जब नसरा आप पढ़ लेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, तब ये चीज, अब नसरू लिखा हुआ आएगा। अब अगर नसरो लिखा हुआ आया तो यहाँ तो ना अल है ना तनवीन है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये इस्म है? मतलब एक एक नया बच्चा एकदम कैसे मालूम करेगा या कैसे मालूम करेगी कि वो ये इस्म है, क्योंकि वो दोनों अलामतें यहाँ नजर नहीं आ रही हैं। फिर एक और अलामत बताई थी, जी हाँ, एक और अलामत ये बताई थी कि शुरू में मीम पेश वाला हो तो भी चांसेस हैं कि वो होगा अगर वो रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। ये भी, वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब फेल कर लेते हैं हम तो ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। फेल के हम तो एक वर्ड यहाँ लिख रहे हैं, इस तरह से जो अल्फाज फेल के होंगे वो सारे आप पहचान लेंगी तो आपका आसानी से पहचान में आ जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप इसम को पहचान लेंगे कि ये इसम है। ठीक है, अभी तो जो मैं बता दूंगी उससे आप निकालें, और अगर कुरान में अपने आप समझ में आ जाए, इजीली आ जाए, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आता है तो आप उसको जोर ना डालें दिमाग पे और ना ही कुछ करें, जस्ट लीव इट एंड वेट फॉर द टाइम। तो मुदाफ का के शुरू में ना अल होगा और ना ही आखिर में तनवीन होगी। ये इसकी पहचान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल नहीं सकती। ठीक है, ये इस मुरक्कब की शर्त है, इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ऐसा होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से मुजाफ जो है वो हमेशा हालत जर में होगा। हालत जर तो आप समझ रही है ना, सिंगुलर के केस में तो आप कह सकती हैं कि जेर होगी उस पे, लेकिन अब जबकि आपको अदद पता चल चुका है तो जैसे आनी की साउंड नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी? अगर मुसन्ना है तो ऐनी की साउंड होगी, आनी ऐनी ऐनी, ये थर्ड वाला ऐनी। इसी तरह ऊना ईना ईना, जमा में ये ईना का थर्ड वाला, बीच वाला नहीं, हालांकि दोनों साउंड एक ही है, लेकिन जर वाला, जर की साउंड होगी ईना। ठीक है, तो बहरहाल फिलहाल अगर दिमाग में ये आता है, हालत याद रखें, हालत जर जब हो इसका मतलब सिर्फ जेर नहीं है। मैं लिख दूं यहाँ पे जेर वाहिद के उसमें, इस तरह से। और आप अगर अभी बना रही हैं तो भी ठीक है, और मैं तो ये चाहूंगी कि अभी सुकून से बैठ के लिखें। ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देख के, इससे क्या होगा कि आपकी रिपीटिशन भी, रिवीजन भी हो जाती है रिकॉर्डिंग देख के, और जब मेरे साथ लिखेंगी तो समझने में थोड़ा तो हिंड्रेंस होता ही है। तो दो दो फायदे हैं अगर आप इस वक्त खाली समझें कि लिखने की ही वजह से इंशाल्लाह आप एक बार जबरदस्ती उसको, रिकॉर्डिंग को देखेंगी। यह आनी, यहाँ नून जेर वाला होता है, और ये ईना। ठीक है, यहाँ इस तरह से होता है, पिछले हर्फ पे जेर होती है, तो ईना ये जमा के केस में। उन, अन, इन, और फिर अगर अल वाला इसम होगा तो जाहिर सिंगल जेर हो जाएगी। और इसी तरह देखें, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, यह लिखना चाहिए था मुझे, ऐनी। ठीक है, आनी ऐनी ऐनी, यहाँ पे इसके ऊपर साकिन है।
तो आनी ऐनी ऐनी ये हो गई हमारी जर की साउंड, थर्ड वाली साउंड जर की। ऊना ईना ईना, और ये हो गया हमारा जमा का ईना। तो ये हालत जर में होगा मुदाफ इलै। जैसे कलमू, अब देखिए कलमू तो पता है ना इसमें, पेन को तो, पेन तो इसमें, जैसे ही मुझे कलमू दिखाई दिया तो अब मैं इसके आगे एक दूसरा इस्म तलाश करूंगी, इट विल बी फॉलोड बाय इस्म फौरन ही। हाँ, और वो भी देखेंगे कि क्या वो हालत जर में है। जी हाँ, हालत जर में हमको एक मिल गया। तो अब कंफर्म हो गया कि ये मुदाफ है। जब देखिए अगर से आपको इस तरह का इस्म मिले और उसके आगे अगर मुदाफ इलै ना मिले तो वो मुदाफ नहीं होगा, चाहे वो मुदाफ की कंडीशन पूरी ही क्यों ना कर रहा हो। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई इस मुदाफ सिर्फ इस वजह से नहीं बनेगा, बल्कि ये कंडीशन पूरी होगी तभी कंफर्म होगा कि वो मुदाफ है, क्योंकि ऐसे इस्म के इस हालत में होने की कुछ और वजह भी हो सकती है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ एक वजह पता है। तो कलमु हामिदिन, हाँ, अब देखिए इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, क्रिस क्रॉस तीर, फिर यहां पे हुआ क्रिस क्रॉस, तो इसका होगा हामिद, और बीच में हम इजाफत के लिए उर्दू में का की के और मेरा मेरी के लिए, मतलब उसके लिए मुतकल्लिम के लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए रा रे री भी लगाते हैं, हामिद का कलम। ठीक है, तो मुरक्कब इजाफी का भी तर्जुमा क्रिस क्रॉस तीर से होता है। ये मैं यहां पे कहना भूल गई कि तर्जुमा इसका तर्जुमा डायरेक्ट तीर से होता है। वो किताब, ठीक है, इसमें सेम ऑर्डर, उर्दू में भी हम इसी तरह बोलते हैं, इशारा पहले और मुशारुन इलैह बाद में। तो इसका तर्जुमा डायरेक्ट तीर से। पिछले इसका तर्जुमा भी क्रिस क्रॉस, डायरेक्ट एंड अगेन क्रिस क्रॉस। ठीक है, हामिद का कलम, और यहाँ पे इजाफत के लिए जो उर्दू में आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं काके की, वो भी आप बीच में लगाएंगे। तो ये हो गया मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे जारी, इस ये भी दो लफ्जों का मजमुआ है, लेकिन अब यहां पे पहला लफ्ज हर्फ होता है और वो भी हर्फे जर होता है, और दूसरा लफ्ज, मैं इसको एक मिनट में जो यहां पे लिखना था इस, जिससे आप भी इसी तरह अपने नोट्स बना लें। इस नहीं लिखना था, हर्फ जर ही लिखना था, हर्फ जर, और दूसरा होता है इस्म। और ये हो, अब देखिए हमने इस्म के नीचे जेर लगा दी। हर्फ कौन सा होता है, हर्फ जर या हरूफ जारा भी कहते हैं। ये 17 है, जिसको कि जब ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो एक शेर की मदद से याद करा देंगे। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजु मुदखला रुब्बा हाशा मिन अदा फी गन अला हत्ता इला। सुनने में हो सकता है अभी लग रहा है ऐसा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आपको याद करा दिया जाएगा। कुरान में इन 17 में से सिर्फ 11 इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर कोई बी ताकीला इस तरह करके याद करना चाहेगा तो उस तरह से भी लिख के दे देंगे, उस तरह याद कर ले। मैंने तो शेर ही याद कर लिया था। ठीक है, हरफे जर, तो ये हुरूफ जर की एक लिस्ट मिलेगी, जब हम लोग ये करेंगे वो याद कर लेंगे, और फिर उसके आगे हमको हमेशा एक इस्म मिलेगा जो हालते जर में होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुरूफ है, ये अपने आगे आने वाले इस्म को जेर कर देते हैं। ये एक मुहावरा हो गया ना स्ट्रेंथ का। जेर कर देना मतलब क्या होता है कि दबा ले जाना। तो ये इस्म को हालते जर में ले जाते हैं।
اور دیکھ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، فی یہ اور فل بیتی، یہ ہو گیا آپ کا حرف جر، اور یہ ہے مجرور اسم۔ اسم کیا ہوا؟ مجرور ہو گیا۔ اور ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پھر کرس کراس تیر کی مدد سے، گھر میں، ٹھیک ہے، میں یہ والے ہٹا دوں تیر کی، یہ کنفیوژن نہ کریٹ کریں۔ تو گھر میں اس کا بھی ترجمہ کرس کراس ہی کیا جاتا ہے، ہم پہلے بولتے ہیں گھر پھر بولتے ہیں میں، لیکن عربک میں فی پہلے آئے گا اور اسم جو ہے بعد میں، حرف جر پہلے اور اسم بعد میں۔ اس کے بعد مرکب عطفی۔ مرکب عطفی، حروف عطف بھی آپ کو یاد کرا دیے جائیں گے۔ یہ مجموعہ ہوتا ہے، یہ کنیکٹنگ حرف ہے۔ اسم پلس حرف عطف پلس ایک منٹ ذرا آتی ہوں میں۔ جی، اسم پلس حرف عطف پلس اسم، تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہ اس مرکب میں حرف عطف دو اسموں کو جوڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ تعالی، جب اس کی ڈیٹ آئے گی، جب اس کا ویک آئے گا۔ فی الحال آپ کو، اور یہ حرف عطف کوئی اثر نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے، بس پہچان اس کی کیسے کرتے ہیں، چلے تھوڑا سا تو بتا ہی دیں ورنہ مشکل ہی ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں معطوف، اس اسم کو کہتے ہیں معطوف، اور یہ تو حرف عطف ہو ہی گیا، اور اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ۔ دیکھیں الہ نہیں ہے، یہ علیہ ہی ہے، اللہ مطلب ہوتا ہے پر، یہ معطوف ہو رہا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر، یہ اس سے ایڈ ہو رہا ہے، جو اس کا اعراب ہوگا، اعراب میں یہ اس کو فالو کرے گا۔ یاد رکھیں پہلے میں نے کہا تھا چاروں چیزوں میں فالو کرے گا نا، یہ اعراب میں اس کو فالو کرے گا۔ اب آج قرآن سے آپ الارضی والسماواتی یہ والے اگزامپل ڈھونڈیے، ہے نا، میں یہاں پہ دونوں طرح کا لکھتی ہوں، یہ بہت ہی، یہ ساری چیزیں انٹرسٹنگ سمجھ کے لیا کیجیے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ گرامر سے بہت ساری چیزیں اتنا کھلتی ہیں اور اتنا سمجھ میں آتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شیطان اسی مزے کو کنفیوژن کر کر کے میرے دماغ میں، ہم لوگ کے دماغ میں پیچھے سے ڈالتا ہے، تو جو لوگ شیطان کی زیادہ سن لیتے ہیں انہی کا کہنا ہے کہ گرامر مشکل ہے، جبکہ مشکل نہیں ہے۔ اب آپ کو دیکھیں، شوق سے سنیے۔ دونوں طرح سے آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، قرآن میں۔
सुभान अल्लाह। देखिए, आपको पता था कि आती आती है ना, चले जमा मुअन्नस की मुझे एराब मैं आपको सुनाती हूँ। आतुन आतिन आतिन, ठीक है, आतुन आतिन आतिन। तो आपने क्या देखा कि आतिन आतिन नसब और जर दोनों की साउंड है, ठीक है, दोनों की ही साउंड है। और जब आपको पढ़ाया जाता है तो आप उस वक्त भी सवाल आ रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, आप लोग बहुत अच्छी लड़कियां हैं, ज्यादा उस तरह के सवाल नहीं करती हैं, लेकिन जहन में तो आ जाता होगा कभी कि हम पहचानेंगे कैसे जब नसब और जर एक जैसे हैं, है ना। एराब में नसब और जर एक तरह से चल रहे होते हैं अक्सर, खासकर मुसन्ना और जमा में। तो इस तरह देखिए, अब ये अल अरदी, ये क्या था, ये जर की हालत में है, ठीक है, और हमें यहाँ पे हरफे अत्फ दिखा। तो अब इस समावाती को यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जर की हालत में है। क्यों? क्योंकि एराब में ये इसको फॉलो करेगा, ठीक है, एराब में फॉलो करता है, तो इसकी क्या है, हालत जर में ही होगा ये। जबकि आप यहां देखिए अल अर्दा, तो ये असमावाती आपके एराब के कॉलम का थर्ड वाला आती है। ये था असमावातु, असमावाती, असमावाती, थर्ड वाला जर होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, कुरान में दोनों तरह से आपको नजर आएगा, अल अर्दा वस्समावाती। यहां पे चूंकि ये नसब की हालत में है, इससे हम समझ गए कि ये समावाती नसब की हालत में है, और ये आपके कॉलम के, आपके एराब की टेबल के सेकंड कॉलम में है ये अस्समावाती। ये बात सबकी समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई, कोई मुश्किल नहीं है, मुरक्कबे अत्फी हम डिटेल में करेंगे ना, वहां पे इससे भी ज्यादा डिटेल में इंशाअल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। समझ में आ रहा है कि किस तरह से, जैसे बार बार कहते हैं कि हम पहचान लेते हैं, ठीक इसी तरह अगर किसी भी लफ्ज से पहले वो लफ्ज नसब और जर दोनों हालतों में सेम है, लेकिन अगर हमें हरफे जर नजर आ गया तो हम कहेंगे कि अब ये उसको, अब हम नहीं कह सकते कि नसब में है, अब हम कंफर्म है कि वो हालत जर में है। तो इस तरह से पहचान में आ जाती है ना। तो जब हम एराब की ये आवाज उन अन इन, यहां तो फर्क फर्क है, लेकिन जैसे ही कहते हैं आनी ऐनी ऐनी, तो फौरन दिमाग में आता है कि अरे ये दोनों आवाजें तो सेम है, ऐनी ऐनी। कैसे पता करेंगे? अगर ऐनी से पहले हरफे जर है तो हम पहचान लेंगे कि ये मजरूर है, ठीक है, इस तरह से पहचान में आती है। तो मुरक्कबे अत्फी का एक और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जो कि हो सकता है कि इंशाअल्लाह ताला मैं बाद में बताऊं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये बाद वाला इस्म पहले वाले इस्म को एराब के लिहाज से फॉलो करता है। तो ये एक इस्म हो गया, ये तो ये पूरा कहलाएगा मुरक्कबे अत्फी, बीच में अत्फ आता है और फिर दूसरे इस्म को वो कनेक्ट करता है इसके साथ, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं पानी और दूध, बिल्कुल उसी तरह जमीन और आसमान, हम बोलते हैं ना जमीन और आसमान, तो उसी तरह से ये और वाली चीज, ये दो इसमों को इस तरह, अब हमने कहा जमीन और आसमान, इतना कह के हम चुप हो जाएं तो भी आप इंतजार करेंगी ना, बात तो पूरी नहीं हुई। तो ये हो गया मुरक्कबे नाकिस। और मुरक्कबे नाकिस की कौन सी किस्म? मुरक्कबे अतफी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों मुरक्कब पूरे हुए, और 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि ये भी करवा लो। जुमला इस्मिया, जैसा कि आपको पता है, फिर वही मैं कहूंगी कि उस क्लास में कई बार ये बात आपके कान में डाली गई और इंशाअल्लाह ताला अब तक जहन में सेव भी हो चुकी होगी कि जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो इस्म से शुरू होता है। सेंटेंस शुरू होगा इस्म से। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसके दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और खबर। अब देखिए, हम यहां ये तो नहीं कह रहे हैं कि दो इस्म होते हैं, है ना, क्योंकि ये तो पूरा जुमला है, ये पूरा सेंटेंस है, यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं। यहाँ पे मुब्तदा एक पूरा मुरक्कब हो सकता है, खबर भी एक मुरक्कब हो सकती है। तो मुब्तदा और खबर ये दो पार्ट होते हैं। मुब्तदा सिंगल लफ्ज भी हो सकता है,
خبر بھی سنگل ہو سکتی ہے. مبتدا کمپاؤنڈ ورڈ ان اوپر جو آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی کمپاؤنڈ ورڈ بھی مبتدا ہو سکتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے کوئی سا کمپاؤنڈ ورڈ خبر ہو سکتی ہے. یہ سنگل ہو سکتا ہے، مفرد ہو سکتا ہے، یہ مرکب ہو سکتا ہے، یہ مفرد ہو سکتا ہے، یہ مرکب. اسی طرح اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جملہ مبتدا اور خبر یہ دونوں مفرد سنگل ورڈ کے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر اوپر بتائے گئے مرکبات میں سے کوئی مرکب ہو سکتا ہے. کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو بتا دوں، اور آپ اپنی اس کلاس میں چونکہ اب تک 20 آئی تھنک 14th لیسن 14 لیسن کر چکے جو کہ جملہ اسمیہ کے ہی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو اچھی طرح جانتی ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں وسعت کے لحاظ سے. ہم ہمیشہ اعراب کو پہلے دیکھتے ہیں تو پہلے اعراب ہی لے لیتے ہیں. یہاں پہ میں لکھتی جا رہی ہوں اور ساتھ میں بتاتی جاؤں گی. اعراب کے لحاظ سے یہ بھی رفع میں ہوتا ہے اور یہ بھی رفع میں ہوتی ہے. یاد رکھیں میں نے ہمیشہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے. یہ 98% کی بات ہو رہی ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکسیپشن بھی دکھے لیکن موسٹ آف دا ٹائم کی بات ہو رہی ہے. اعراب کے لحاظ سے جملہ اسمیہ میں دونوں رفع کی حالت میں ہوں گے. جنس کے لحاظ سے مطابقت ہوگی. وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں اس کلاس میں کہ جب مبتدا میسکولن یعنی مذکر تو خبر بھی مذکر آ رہی تھی، جب مبتدا فیمنن تو خبر بھی فیمنن آتی ہے. تو جنس کے لحاظ سے مطابقت یا میں لکھ دوں سیم، دونوں کیا ہوں گے؟ سیم ہوں گے. عدد کے لحاظ سے بھی سیم ہوں گے. ٹھیک ہے، سیم آئے گا. جبکہ وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. ٹھیک ہے، خبر نکرہ یہ معرفہ ہوگی اور یہ خبر نکرہ. عموماً عام طور پہ موسٹ آف دا ٹائم 95% کیا ہوگا؟ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. تو اس طرح سے جملہ اسمیہ کی ایسی کنسٹرکشن کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بھی دیکھیں گے اس طرح سے. اب دیکھیں الولد صالح. اب اس کا ترجمہ ہوگا لڑکا نیک ہے. نیک لڑکا نہیں ہوگا اس میں. اچھا اس کی بھی ترجمے میں کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کا ڈائریکٹ ایسے ہی ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لڑکا. یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ کا مبتدا مرکب اضافی ہو گیا تو ان سائڈ آپ کرس کراس کریں گی، لیکن مبتدا کو پہلے اور خبر کو بعد میں. لڑکا نیک ہے، یہ ہم نے ہے اور یہ فل سٹاپ کیسے پتا کیا؟ اس پوائنٹ کی وجہ سے پتا کیا. اس پوائنٹ کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ہماری پہلا اسم یعنی مبتدا ہمارا کیا ہے؟ معرفہ ہے اور ہمیں ایک نکرہ خبر مل گئی، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا اور ترجمہ ہوگا لڑکا نیک ہے. اگر یہ ہوتا الولد الصالح، یہ بھی معرفہ اور یہ بھی معرفہ، تب ہم اس وقت کہتے نیک لڑکا، کرس کراس تیر کرتے اور مرکب توصیفی کی طرح نیک لڑکا ہوتا وہ. تو یہ اس کا نکرہ ہونا اس کو خبر کی اس میں لے جاتا ہے اور جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر ہمارے پاس دونوں. ٹھیک ہے، الولد صالح.
کرتے ہیں جملہ فعلیہ کے تھوڑی سی انٹروڈکشن. جملہ فعلیہ کہ آپ دیکھیں گے کہ عربک لینگویج کی خوبصورتی. جملہ فعلیہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفینیشن آپ نے نکال ہی لی ہوگی کہ یہ وہ اسم ہے، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اور اس کے دو مین پارٹ جو ضروری پارٹ ہیں وہ کیا ہے؟ فاعل اور فعل. ظاہر ہے کوئی کام کسی کام کا ہونا چاہیے، یعنی کوئی کام ہونا چاہیے، اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس کو کوئی کرنے والا ضرور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام اپنے آپ وجود میں آ جائے. تو کسی بھی کام کو، جو کام ایگزسٹ ہوا، اگر کوئی کام ہوا تو اس کو کرنے والا کوئی ضرور موجود ہے. اور یہی ایک پوائنٹ ہم کو اللہ کی پہچان، کیونکہ ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ کی کائنات کو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں سبحان اللہ دماغ بھی دیا ہوا ہے. اس دماغ کے ذریعے ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا؟ اس کو کرنے والا کوئی ہے. اور یہ جو ساری چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں کائنات کی، بڑی بڑی سے لے کر چھوٹی چھوٹی، ایک چھوٹے سے سیل کے فنکشن کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرے ہر مخلوق کو فیل پاتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی کام کر سکے. کر کیا سکنا، پلان بھی نہیں کر سکتے اس طرح سے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے آئیڈیا پہ ہی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ کی جو بھی کوئی کام ہوا ہے اس کو کرنے والا ضرور ہے. تو جملہ فعلیہ کے دو لازم جز جو ہیں وہ کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے نا. اور ایڈیشنل، ہم اس کو تھوڑا دور لکھ دے رہے ہیں. ایڈیشنل کیا ہے؟ مفعول بھی کسی چیز کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے. مفعول کیا ہے؟ جس کے اوپر کام ہوا. ٹھیک ہے، جیسے ہم یہاں پہ ایک جملہ لکھتے ہیں، نصر. یہ دیکھیں میں نے ورڈ لکھا ہے، لیکن یہ ورڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے. سبحان اللہ، یہ جملہ فعلیہ ہے. نصر، آپ کو روٹ لیٹر کا مطلب تو پتا ہے، مدد کرنا، نون صادرہ، مدد کرنا. جب یہ ان حرکات کے ساتھ اور اس اعراب کے ساتھ جب یہ لفظ آیا تو اس کا مطلب ہوا اس نے مدد کی. آپ دیکھیں یہ فعل ہو گیا اور یہ زمانہ ہو گیا، پاسٹ ٹینس ہو گیا. تو یہ ہماری فعل کی کنڈیشن پوری ہوئی. فعل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ ایسا لفظ جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے، کام بھی ہو اور پریزنٹ، فیوچر یا پاسٹ کا پتہ چل رہا ہو. اس نے مدد کی، پاسٹ ٹینس کا ہم کو پتہ چل گیا، تو یہ ہمارا فعل کمپلیٹ ہوا. اور یہ فعل کا یہ لفظ ٹیبل کے جس باکس میں آتا ہے اس باکس میں ہوا یعنی ہی کی ضمیر موجود ہوتی ہے. تو اس سے یہ اس کا بھی ترجمہ آپ لوگ کر رہے ہوتے. نصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے، نصرہ اس نے مدد کی. unless until فاعل یہاں پہ ظاہر نہ ہو جائے. اس کا بھی ایک ایگزامپل دکھا دیتے ہیں. اگر فاعل ظاہر نہیں ہے تو پھر اسی ضمیر کو جو اس لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہے فاعل تسلیم کر کے جملہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، مطلب جملہ سمجھا جاتا ہے. نصرہ اس نے مدد کی.
इसी तरह यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा। देखिए पूरा जुमला कंप्लीट है, बात बात पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। अगर ये जाहिर हो जाए, आपको आपने ये देखा ना फेल की क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है। मैं यहाँ फेल की लिख दूं पहले। सुभान अल्लाह, मैं यहीं पे लिखूं। फेल की दो कंडीशन है, काम प्लस जमाना। ये जमाना बहुत ही जरूरी है, अगर ये जमाना नहीं रहा तो फिर ये फेल हो ही नहीं सकता। सिर्फ काम आप बताएं और जमाना साथ में ना पता चले तो वो फेल की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, वो जंप करके इसमें चला जाएगा। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो लिख रहे हैं, मतलब कि ये चीज फेल बनने की एक जरूरी कंडीशन है। अगर जमाना नहीं पाया जाएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, सिर्फ काम की बात आप करें और उसमें जमाना ना हो तो वो फेल नहीं होगा, वो इस्म हो जाएगा। तो फिर वो बात ही नहीं हुई जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, फाइल के लिए मैं एक खाली पेज लेती हूँ, यहाँ आती हूँ, क्योंकि फाइल की कई सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले, अगर फाइल जाहिर है, ठीक है, क्योंकि छुपे वाले की तो मैंने यही बात कर दी कि अगर जाहिर नहीं है तब इसी के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर हमें फेल का वो लफ्ज मिलेगा, मैं अभी नंबर भी नहीं बता रही हूं कि कहीं आपको ज्यादा न लग जाए, टेबल के जिस बॉक्स के अंदर हमको वो लफ्ज मिलेगा, अगर उस आयत के अंदर हमको कोई जाहिरी फाइल नजर नहीं आ रहा है तो जिस बॉक्स के अंदर हमको वो मिलेगा वहां से हम जमीर पिक करके उस, उन, वो, हम, मेरी, ये सब हम यहां से लगा लेंगे। ठीक है, मेरी नहीं, मैं, तो वहां से हम फाइल को पिक कर लेते हैं। लेकिन अगर फाइल जाहिर है, इसका तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया, जाहिर को पहले समझ ले, एग्जाम्पल बाद में लेके आते हैं, पहले पॉइंट्स देख ले कि फाइल जो है वो फेल के बाद आता है। पहले फेल आएगा, वर्ब आएगा, तब फाइल क्या है, काम करने वाला। ठीक है, फाइल कौन है, काम करने वाला। चलिए मैं यहां लिख दूं, ये एक हमने जुमला फेलिया लिखा, ये फेल है और काम करने वाला ये है, तो फाइल फेल के बाद आता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लिया आपने, क्लियर हो गया। सेकंड, फाइल हालत रफा में, जब हालत की बात करें तो आप समझ जाएं कि एराब की बात हो रही है। ठीक है, हालत और एराब एक ही चीज होती है। हालत रफा में ये फाइल हमेशा हालत रफा में, तो आप देखिए यहाँ पे कतला, कत्ल किया। अब ये जब फाइल जाहिर हो जाता है तब हम ये उस वर्ड को छोड़ देंगे। यहाँ पे देखें, न सरा, उसने मदद की, क्योंकि आगे कोई फाइल नहीं था तो हमें यहीं से लेना पड़ा फाइल। लेकिन जब फाइल जाहिर हो जाता है तब आप नहीं कहेंगे कतला, उसने कत्ल किया, दाऊदू, दाऊद ने, ऐसे नहीं बोलते। अब क्या करेंगे, कतला, अब इसके नीचे आप लिखेंगे कत्ल किया, बस इतना ही लिखेंगे, कत्ल किया। क्यों, क्योंकि अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे फाइल जाहिर है। तो इसका तर्जुमा जब आप आयत का करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कतला, कत्ल किया, दाऊदू, दाऊद ने। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये आपको हालत रफा में दिखाई दिया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हालत रफा में हो गया। और ये फेल और फाइल, अब जाहिर है ये तो वर्ब है और ये इसमें है ना, ये क्या है, मैं यहां लिखूं क्या कि फाइल जो है वो इस्म है,
फेल से मत कंफ्यूज होइएगा, ये इसम आएगा, काम के करने वाले को फाइल कहते हैं। तो फेल और फाइल सिर्फ जिन्स में सेम होंगे। अगर ये मुजक्कर का वर्ब होगा, काम मुजक्कर ने किया तो वर्ब मुजक्कर वाला यूज होगा, अगर काम मुअन्नस ने किया तो वर्ब मुअन्नस वाला इस्तेमाल होगा। तो सिर्फ जिन्स में ही मुताबिकत रखेंगे, ठीक है। तो एराब का इससे बहुत बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ये रफा की हाल। अब देखिए आगे आगे बात कंप्लीट करती हूँ। क़तला दावूदु जालूता, ये नसब की हालत में। तो मफऊल जो है जिसके ऊपर काम हुआ तो वो नसब की हालत में, इसीलिए आप तर्जुमा करती हैं कतला कत्ल किया, दावूदु दाऊद ने, जालूता जालूत का, ठीक है। दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। अगर आप इसको सेंटेंस बनाएंगी तो हम लोग तो अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हर वर्ड का नीचे नीचे लिखना होता है, तो इस तरह करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस बनाएंगी तो कैसा होगा, दाऊद ने, कैसे पता चलेगा ने, हमने रफा वाला हम इसम लेंगे यहां से। दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, ठीक है। जालूत का कत्ल किया या जालूत को कत्ल किया, तो ये मफूल है जिसका कत्ल हुआ। अब अगर ये पेश जबर बदल गई तो कातिल मकतूल बदल जाएंगे ना। और याद रखें कि अरबिक में ऑर्डर से मतलब नहीं है। अगर ये जुमला तो कुरान का है, इसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये वर्ड यहां हो जाए और ये वर्ड यहां हो जाए, उस वक्त भी एराब ही बता रहा होगा। याद रखें ऑर्डर से मतलब नहीं है, एराब ही बतलाएगा कि रफा। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रफा वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप चेंज कर देंगी तो फाइल और मफूल उलट जाएंगे, बात गलत हो जाएगी, और अल्लाह और मखलूक की बात हुई तो बात एकदम ऑपोजिट, शिर्क और कुफ्र हो जाएगा। तो इसलिए एराब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए जुमला फेलिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। और जब इंशाअल्लाह ताला डिटेल में करेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। और जैसे हमने कहा कि जब हमको पूरा कुरान समझना है तो जाहिर हमें ज्यादा से ज्यादा हर चीज हमको ज्यादा चाहिए होती है, तो इंफॉर्मेशन भी हमको ज्यादा ही चाहिए होनी चाहिए, खासकर जबकि हमारी नीयत है कि हम कुरान को समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का ये हल्का सा इंट्रोडक्टरी लेसन था इन सारी चीजों का। और अब आप देखेंगी कि हो सकता है कि एक एक मुरक्कब हमारा अगर डिमांड करेगा तो हम कई कई लेसन लेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर हम इसको मुरक्कब तौसीफी को फिर कोशिश करेंगे कि एलिमेंट्री लेवल पे ना छोड़े, आपको थोड़ा सा एडवांस की तरफ ही लेके जाएंगे, और धीरे धीरे आपको कुरान में चीजें क्लियर होंगी इंशाअल्लाह ताला। इजाजत दें, इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।